एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसमें बेसिकली हमें इंडिया और कनाडा के सारे रिलेशंस का बारे में जो है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इससे पहले भी हम जो है वो सर प्रशांत धवन और मेजर गौरव आर्या सर की वीडियोस देख चुके हैं जो सारे टॉपिक के बारे में थी, और इससे रिलेटेड जैसे जैसे नई अपडेट्स आ रही हैं वो सब हम आपके साथ देख रहे हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं हमें क्या सुनने को मिलता है। बाकी सब ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास और बढ़ गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। हालांकि भारत सरकार ने ट्रूडो के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच के मद्देनजर कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को भी निकाल दिया है। इसके कुछ देर बाद खबर आई कि भारत ने भी कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निकाल दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा, भारत ने कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्त को आज सम्मन करके भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी गई। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, Mr. Speaker, today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly. I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, 1, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and 2, safety first, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I also expect it to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry
or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change us. Let us remain calm and steadfast in our commitment to our democratic principles and our adherence to the rule of law. भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा हम उसे खारिज करते हैं। कनाडा की विदेश मंत्री के बयान को भी हम नकारते हैं। कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाना हास्यास्पद और राजनीति से प्रेरित है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे और हमने उन्हें भी पूरी तरह खारिज कर दिया था। हम कानून के राज को लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और अतिवादियों से ध्यान भटकाने के लिए हैं। ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों और अतिवादियों को कनाडा ने प्रश्रय दे रखा है जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। इन मामलों में कनाडा की सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करना लंबे समय से चला आ रहा है और हमारे लिए अब चिंता की बात बनी हुई है। कनाडा के नेता ऐसे तत्वों से खुलेआम सहानुभूति जता रहे हैं और ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसी गतिविधियों को फलने फूलने देना कोई नई बात नहीं है। ऐसी गतिविधियों में भारत सरकार को जोड़ने की किसी भी कोशिश को हम खारिज करते हैं। हम कनाडा की सरकार से आग्रह करते हैं कि कनाडा की धरती से संचालित होने वाले भारत विरोधी गतिविधियों पर तत्काल और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें। इसी साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने बताया कि इस मामले की जांच को लेकर भारत के एक शीर्ष डिप्लोमेट को कनाडा ने निकाल दिया है। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. कनाडा के कुछ सिख संगठनों ने ट्रूडो के फैसले का स्वागत किया है। इन संगठनों में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। इस संगठन ने एक बयान में कहा है कि समुदाय के बीच ये बात पहले ही कही जा रही थी और ट्रूडो के बयान ने इसकी पुष्टि कर दी है। कनाडा में 14 से 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। पंजाब के अलावा सिख सबसे ज्यादा कनाडा में ही हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रूडो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। इस दौरे में ट्रूडो के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में सिख अलगाववादी गतिविधियों और भारतीय राजनयिकों पर होते हमलों का मुद्दा उठाया था। जानकारों ने कहा था कि दोनों नेताओं की मुलाकात काफी तनावपूर्ण रही। ट्रूडो के मुल्क लौटने के कुछ वक्त बाद ही कनाडाई वाणिज्य मंत्री मैरी एनजी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया था कि कनाडा ने भारत से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है। वीडियो में जो है वो में इंडिया और कनाडा के, जो कि हमें रीसेंट न्यूज़ चैनल्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि इंडिया और कनाडा के दरमियान काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और उसमें अगर एक मेन रीज़न की बात की जाए तो उसमें ये है कि कनाडा का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके उधर जो सिख बरादरी रहती है उसमें जो है वो हरदीप सिंह निज्जार, उनका जो मर्डर है वो मे बी भारत की तरफ से करवाया गया है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई प्रूफ की बेस पर इस बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि ये जस्ट जो है वो एज अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं इस बारे में। तो ये चीज़ इस पर हम ये नहीं एग्री कर सकते, क्योंकि या तो अगर वो अपना एक पॉइंट दे रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो उस चीज़ के लिए कोई प्रूफ भी दें।
तो जिस तरह हमने कुछ व्लॉग्स वगैरह में या इंडिया की जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें भी देखा है कि इंडिया में जो है वो सारे कल्चर के ऑलमोस्ट लोग रहते हैं, चाहे वो सिख हो जाएं, हिंदू हो जाएं, मुस्लिम्स हो जाएं। इंडिया में काफ़ी रिलीजन और काफ़ी डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में। और कितने लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखा है कि वहाँ पर इक्वली सबको ही राइट्स मिलते हैं, यानी कि कोई भी कम्युनिटी हो वहाँ पर सबको एक, जिसे कहते हैं ना, एक लिविंग राइट सबको हासिल है। सारे अपनी मर्ज़ी से रहते हैं वहाँ पर, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करते हैं, अपना कल्चर करते हैं। तो इससे हमें कोई इस तरह की इंडिया से यानी कि एक वो नहीं है, यानी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि इंडिया के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं तो ये सच हो सकते हैं या नहीं। तो जितना हमने देखा है हमें उससे देख के नहीं लगता कि इंडिया में इतना कभी कुछ गलत हुआ है किसी सिख बरादरी के लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले किसी इंसान के साथ। और जिस तरह पहले भी हमें वीडियो में देख चुके हैं कि इंडियन पंजाब वाला जो एरिया है वहाँ पर जो है वो खालिस्तानी अपना जो है वो अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इंडिया के मुताबिक वहाँ पर जो है वो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, तो इंडिया इनको डिस्करेज करता है। जबकि कैनेडन जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, क्योंकि उनका जो लीडर था खालिस्तानी हरदीप सिंह निजार, वो बेसिकली उनको कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स दे रहा था, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह उसका मर्डर हुआ है और वो इसका इल्ज़ाम जो है वो इंडिया के लोगों पर लगा रहे हैं, तो इस इल्ज़ाम के लिए भी उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, कोई वैलिड पॉइंट होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने स्पीच में भी कहा कि हम किसी कैनेडियन सिटीज़न का मर्डर जो है वो कैनेडियन सॉइल पर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ ठीक है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके ही मुल्क के किसी इंसान का मर्डर हो उसी जगह पर और वो एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वैलिड चीज़ें लानी चाहिए। और जैसे कि दुआ आपने सारी ये बात की, तो इससे हम भी आइडिया लगा सकते हैं कि जिस तरह इस वीडियो के स्टार्ट में हमें जो कैनेडियन फ़ीमेल की स्पीच देखने को मिली, जिसमें उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, और अगर उनके सबसे फर्स्ट और मेन प्रिंसिपल की बात की जाए जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल सीक द ट्रुथ, तो उन्हें अगर वो ये बात कर रहे हैं तो उस बेस पे उन्हें जो है वो इस चीज़ का प्रूफ देना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि उनके जो हरदीप सिंह निगार हैं उनका मर्डर जो है वो भारत की तरफ से करवाया गया है, तो वो चाहिए कि वो वैलिड रीजंस उसके रखें या प्रूफ देंगे अगर इस तरह से कुछ हुआ है। और दूसरा, अगर उन्होंने बात की दूसरे प्रिंसिपल की कि वी विल प्रोटेक्ट द कैनेडियंस, तो ऑब्वियसली वो हर कंट्री जो है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पब्लिक की हिफाजत करें। तो लेकर अगर बात कर ली जाए कि जैसे अभी उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, स्टिल वो इतने बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, अगर फ्यूचर में जाकर ये चीज़ गलत साबित हो जाती है कि इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं करवाया, तो इससे कनाडा का कितना गलत इमेज पूरी दुनिया के सामने जाएगा कि वो किस तरह कॉन्फिडेंटली जो है वो भारत को नेगेटिवली तौर पर दिखा रहे थे पूरी दुनिया के सामने, और ख़ुद वो कितना जो है उनका एक नेगेटिव इमेज जाएगा। तो हम बस होप कर सकते हैं कि जो भी हमें मीडिया पे सारे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उनका जो है वो कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। बाकी इस हवाले से मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।